हेलो स्टूडेंट्स। हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। आप सबका यहाँ पे बहुत स्वागत है। और बच्चों, माई सेल्फ विनय कुमार शूर एंड आई रियली होप बच्चों आप सभी हमारे ओलंपियाड चैनल से जुड़े हुए हैं। और आप सबका बहुत प्रेम अपने को मिल रहा है, तो उसके लिए तो पहले तो तहे दिल से शुक्रिया। और जैसा कि हमने बेटा वादा किया है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आएंगे एंड द पर्पस इज सिंपल, दैट कैन वी ब्रिंग गोल्ड टू आवर कंट्री। ठीक है। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सीरीज कॉल्ड एज फन विद फिजिक्स ओलंपियाड। और आज गाइस आई एम हियर फॉर अ डिफरेंट मिशन। ठीक है। तो आज आई विल ट्राई दैट आई विल टीच यू फ्यू कॉन्सेप्ट्स, लाइक आई एम गेटिंग अ फीडबैक कि सर देर आर फ्यू टॉपिक्स इन विच वी आर नॉट हैविंग द क्लैरिटी and they are very very important from Olympiad point of view. So for that I will give you some insights. Okay. But before doing it students, let me give you a brief introduction about what kind of courses we offer here at Vedantu Olympiad School. ठीक है। तो आई गेस सबको आइडिया तो होगा ही हम इसमें क्या करने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो गाइज वी विल डील विद जेई, वी विल डील विद ओलंपियाड्स, वी विल डील विद केवीपीवाई। सो जो भी कंट्री के प्रेस्टिजियस एग्जाम्स हैं, तो वी हैव INPHO बैच फॉर दैट फॉर क्लास 11th as well as for class 12th. Okay. So we have INPHO batch, we have NACP batch. So हर तरह के batches में we cater all kind of Olympiads in physics, and in which we do the questions of Irodov and Pathfinder and many more other books, like we also do some problems of USAPHO, डिफरेंट कंट्रीज के ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस भी हम क्लासेस में बच्चों को करवाते हैं। ठीक है। एंड हर सेक्शन से उसके अंदर हम उसको डील करते हैं एंड नियरली वी ट्राई टू गिव 30 to 35 प्रॉब्लम्स। ओके। सो जैसा कि मैंने पहला भी अपनी वीडियोस में बोला कि our purpose is not that we keep on disturbing you with lots of work, but we will give you quality questions in the class as well as the quality questions for the homework, and that will require an effort of only 5 to 6 hours per week. So that will not going to hamper your normal preparations. Okay. So it will be just adding your knowledge, तो आपकी knowledge को enhance करेंगे। and how you will connect with us, then it's very important students, kindly note it down this email ID physics.vos है ना @gmail.com. So I will give few questions है ना at the end of every video. और students, if you have some qualifications like NACGS, you are qualified NACGS, okay, और NTSC stage 2 तक अगर आप गए हुए हो, okay, even चलो stage 1, but if you have some SOFs, Olympiad qualification, so anything something like that. So if you wanted to connect with us, you can directly give us a mail on this email ID with some proofs, okay, so that we can get back to you. Okay. And at the same time जो भी questions मैं घर के लिए दूंगा, उन सबका assignments भी आप सब यहाँ पे मुझे भेज सकते हैं। ठीक है। So this is like a batch for +1, a similar kind of batch for +2 with everything is same. Okay, is there, and the problems will be little less as +2 students are already busy. And again, this is the same email ID in which you can share us with the details to connect with you. Okay. So now students, what is the agenda of today? Why we are here? So students, today I am not here with any good complicated questions. Okay. So today I am here to teach you something. So what I thought, like I am getting a response from many students. Many good students are facing into a topic called as differentiation of vectors, and it is very very important students for Olympiad point of view. So this video is not only about the questions this time. This video is about some theory and then one or two questions and some homework also. Okay. So guys, lots of students have lots of doubts in vectors. Lots of students have doubts in differentiation. So there is a very unique topic called as differentiation of vectors, which I am going to teach you today. Okay. So students, we can learn like what is the differentiation of a vector. Okay. So first let's understand the theory and then I will give you a question. Okay. So students, we have, let's say, an axis. Okay. X-axis and Y-axis. Normal, something like that. And students, let's say we have a vector. Okay. We have a vector of length r at an angle theta with horizontal. Okay. So now that is my r vector. Okay. And guys, if I define, this is an r vector at an angle theta, and students, if we define a unit vector in the direction of r having length 1, that is called as r cap. Okay. So students, what is r cap? R cap को हम क्या लिख सकते हैं? We can define r cap as r vector upon mod r. R vector को उसके mod से अगर हम divide कर दें, that is called as r cap. Okay. So I can put this thing into an equation. Okay.
सो वेक्टर का डिफरेंशिएशन बच्चों सीखने वाले हैं एंड दिस एंगल इज स्टूडेंट्स हाउ मच, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. Similarly students, we have a vector in the direction of tangent, like tangential जो होगा वो होगा t cap, मतलब लेंथ जो होगी वो होगी 1, ठीक है, and that will be perpendicular to this r vector. So we have a vector t cap. I can write t cap. What is t cap? T cap is a unit vector in the direction of tangent. ठीक है. So students, try to see what I am going to teach you today. That I have an r vector. Okay, so I am not talking about the differentiation of a vector. It means the vector is changing. So differentiation means change. So vector change हो रहा है. अगर vector change हो रहा है तो मतलब बेटा क्या होने वाला है, हम उसका डेरिवेटिव अगर डिस्कस कर रहे हैं तो डेरिवेटिव का मतलब ही होता है चेंज. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, दैट इसका एक तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये घूम भी रहा होगा. द डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग, द डायरेक्शन इज ऑल्सो changing. ठीक है. So that is why we are talking about a term called as differentiation of vector, in which a vector is changing, differentiation means a change, and we are try to learn the derivative of a vector. ठीक है. So students, before doing anything, I hope आपको ये कुछ standard data दिख गया होगा यहाँ पे कि if I simply take an axis and if I parallel shift this vector, parallel shifting of vector is allowed students. ठीक है. अगर अपन उसको थोड़ा सा parallel shift कर दें तो this length is 1, this angle is theta and this is guys r cap. ये आपका जो है वो r cap है. तो students, what I can write, I can write my r cap as, अगर आप थोड़े से इसके coordinates लें, it can be written as cos theta I cap plus sin theta j cap. That is the value of r cap. ठीक है. अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, like you need to take few components. कैसे लेंगे आप यहाँ पे इसका cos theta कंपोनेंट ले लीजिए. ओके, दैट इज cos theta, 1 cos theta, और अगर आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे दैट इज sin theta. तो cos theta I cap plus sin theta j cap and you can see something like this. ठीक है. Similarly students, you can also take in fact आप एक और ले लीजिए बच्चों, है ना. आप पैरेलल शिफ्ट करिए, लाइक दिस इज नाउ 90, दिस इज 90. ये एंगल जो होगा आपका, दिस एंगल इज नाउ हाउ मच, हाँ जी, ये आपका एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा. तो ये अगर आप थोड़ा सा अपना अकल लगाएं, ठीक है ना, दैट विल बी थीटा. थोड़ा सा अगर आप उसको विजुअलाइज करें, सो दैट विल बी एंगल थीटा. सो अगर मैं टी कैप को भी पैरेलली शिफ्ट कर दूं, इफ आई पैरेलली शिफ्ट टी कैप, उसका वर्टिकल से जो एंगल आएगा दैट एंगल इज ऑल्सो थीटा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल गेट, we will get the vertical component as cos theta and the horizontal component as sin theta. तो बच्चों, अगर मैं t cap का इक्वेशन लिखूं तो what is my t cap? T cap is nothing, it is minus sin theta I cap plus cos theta students j cap. ठीक है. तो t cap किसके बराबर है? माइनस sin theta I cap plus cos theta j cap. ठीक है. तो आई होप आपको बेटा r cap पता है, cos theta I cap plus sin theta j cap, t cap पता है, माइनस sin theta I cap plus cos theta j cap. ठीक है. तो चलिए दोबारा हम थोड़ा सा सारा डेटा जो भी हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है उसको सिमुलेट करते हैं. ठीक है. बस अगले 5 मिनट में आप डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स बेटा सीख जाएंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, कहाँ पे थे हम? हमारे पास था एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. we were having a r vector, ठीक है, एंगल था उसका थीटा, और a unit vector in the direction of r cap, okay,
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज कॉल्ड एज आर कैप, जिसका लेंथ जो था वो 1 था, एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड एज टी कैप। ठीक है, उसका भी जो लेंथ था वो 1 था। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर कैप? अगर हम आर कैप की वैल्यू लिखें, आर कैप किसके बराबर है आपका? यस, आर कैप जो निकल के आया था दैट वाज cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी कैप? टेंजेंट की वैल्यू क्या आई थी? दैट इज माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। तो ये बेटा आपके पास आर कैप और टी कैप। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स यू सी दैट अगर आप क्लोजली वॉच करें, एंड यस ये तो फॉर्मूला सबको पता ही होगा, आर कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, वो होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो गाइस अगर आप थोड़ा सा क्लोजली वॉच करें, ठीक है, मैं यहां पे अगर आर वेक्टर को ऑब्जर्व करूं तो आर वेक्टर किसके बराबर आ रहा है? दैट इज आर इंटू आर कैप। आर वेक्टर किसके बराबर आ रहा है? आर इंटू आर कैप। ठीक है, this part is representing magnitude and this part is representing students direction. ठीक है, r cap will give me the direction, that is like 5 I cap. I cap will give me the direction, and guys this represents the magnitude. Now this is variable, अगर वेक्टर का जो लेंथ है वो बढ़ रहा होगा वो वेरिएबल होगा, एंड इफ द वेक्टर इज रोटेटिंग द थीटा इज आल्सो वेरिएबल। सो थीटा वेरिएबल होगा तो डेफिनेटली जो आर कैप होगा हमारा वो भी वेरिएबल होगा। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड इज आल्सो चेंजिंग, डायरेक्शन इज आल्सो चेंजिंग, एंड आई नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो गाइस आई नीड टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो गाइस मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हैं मैं आपको क्या करवाने वाला हूं। तो अगर मैं इस वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ, डिफरेंशिएट द वेक्टर टाइम के साथ, ये कैसे चेंज हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर टाइम के साथ इसे बेटा डिफरेंशिएट कर दें तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये दिख गया होगा, काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको दिख गया होगा। तो व्हाट आई विल गेट डी आर वेक्टर बाई डी टी। यहां पे बेटा आपका लगेगा यूवी रूल। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यू को एज इट इज, आर को कुछ नहीं कहना, आप डी आर कैप बाई डी टी कर लो, आप आर वेक्टर के आर कैप को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लो। प्लस स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे आप बताइए? उसके बाद आप क्या करेंगे? आप आर को डिफरेंशिएट कर लें, u इंटू यू का डेरिवेटिव इंटू वी। वी जो होगा वो आपका होगा एज इट इज। ओके, सो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप u को कुछ नहीं कहेंगे, u एज इट इज, आप इसको डिफरेंशिएट कर दें इंटू वी डैश, दैट इज डी आर कैप बाई डी टी। फिर आप बेटा इसका डेरिवेटिव लें u डैश इंटू वी, सो डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप। ठीक है, दिस इज दी वन थिंग जो आप सबने दिमाग में रखनी है। ठीक है गाइस, बस एक छोटा सा काम बचा है, ज्यादा कोई मुश्किल काम रहा नहीं, हम काफी हद तक अपनी चीजों को कंक्लूड करने वाले हैं। लाइक ये अगर आप फैक्टर ऑब्जर्व करें आर कैप का, आपने इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो बट ये जो आर कैप है हमारा दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो आई विल डिफरेंशिएट इट इन थीटा। तो मैं इसे अगर डिफरेंशिएट करूं, आई कैन यूज दिस स्पेस। हाँ जी, मैं इसे अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा गाइस? माइनस साइन थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा। आई कैप इज अ कांस्टेंट। आई कैप बेटा वेरिएबल नहीं है, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है, तो आई कैप वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो cos थीटा बस थीटा चेंज हो रहा है, तो माइनस cos थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, और साइन थीटा का गाइस क्या आ जाएगा आपका डेरिवेटिव? दैट इज cos थीटा। सो प्लस cos थीटा जे कैप, और इधर बेटा क्या आएगा? आपने किस में डिफरेंशिएट किया? आपने थीटा में डिफरेंशिएट किया, सो डी आर कैप बाय डी थीटा। ठीक है, सो गाइस कुछ नहीं किया, आर कैप का फंक्शन था थीटा में, और जब ये वेक्टर रोटेट होगा तो थीटा जो होगा वो चेंज होगा, तो मैंने उसको थीटा के चेंज में अगर उसको हम डिफरेंशिएट करें तो cos थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का आ जाएगा आपके सामने बेटा cos थीटा। तो गाइस मेरे ख्याल से गेम आपकी सॉर्टेड है, आप डी थीटा उधर ले जाइए। ठीक है, और ये अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ओ माय गॉड, हाँ जी, व्हाट इज द ब्यूटी, माइनस साइन थीटा आई कैप और cos थीटा जे कैप आपके पास क्या आ जाएगा गाइस? टी कैप, ये टी कैप आ जाएगा, और डी थीटा आप इधर ले आए, दैट इज इक्वल टू गाइस डी आर कैप। सो डी आर कैप की वैल्यू बेटा आपके पास आ रही है डी थीटा इंटू
ठीक है, तो गाइस मेरे ख्याल से गेम आपकी नियरली सेटल्ड है। dr vector by dt comes out to be r into गाइस dr कैप, dr कैप की वैल्यू डाल दीजिए d थीटा इंटू टी कैप, और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो आ जाएगा dt प्लस गाइस dr by dt इंटू आर कैप। ठीक है, ओके सो गाइस आई गेस मेरा काम हो गया है, मैं जहां तक आपको ले जाना चाहता था मैं वहां तक पहुंच गया। ठीक है, बस इस फैक्टर को एक बार दिमाग में रखें, dr by dt इज द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर, और इसके अंदर दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है टी कैप और एक आपका आ रहा है आर कैप। ठीक है, मैं एक सेकेंड बेटा आपको इसको दोबारा अब कंक्लूड करते हैं कि ये पूरा जो कहानी है ये कहानी है क्या और हम कहां जाना चाह रहे हैं। सो गाइस नाउ आई एम कंक्लूडिंग एवरीथिंग। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास है बेटा, ये जो है हमारा दैट इज माई आर वेक्टर, दिस एंगल इज नाउ थीटा, और गाइस जो हमारा आर वेक्टर था, ये जो हमारा आर वेक्टर था बच्चों, ये किसके बराबर था, ये जो आर वेक्टर था बेटा दैट वाज आर इंटू आर कैप। ठीक है, ये आर इंटू आर कैप के बराबर था। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड आर और डायरेक्शन जो थी वो उसकी आर कैप थी। बेटा जब मैंने dr बाई dt निकाला, जब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आया है, एक तो आया है dr बाई dt इंटू आर कैप प्लस dr बाई dt आपके पास आया। ठीक है, ये आपने इसको टाइम में डिफरेंशिएट किया, आर कैप एज इट इज, फिर आपने आर को एज इट इज रखा। ठीक है, और साथ में क्या है आपके आर कैप के साथ, जब उसका डेरिवेटिव लिया आपने तो भी आपने प्रूव किया आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, और साथ में जो आपकी डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है। तो बच्चों मैं कहना क्या चाहता हूं, अब बात कंक्लूड करने पे आ गई है कि एक तो जो डेरिवेटिव है, एंड गाइस वी नो दैट dr by dt इज नथिंग, इट्स वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का जो डेरिवेटिव है दैट इज वेलोसिटी। सो गाइस जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर है। ठीक है ना, वो तो लॉजिकल है, पता ही है सबको। उस वेक्टर का एक कंपोनेंट आएगा dr by dt, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, आर कैप की डायरेक्शन में आएगा, और इसको बेटा हम बोलते हैं वी आर, दैट इज रेडियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं अपन इसको, रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। और एक कंपोनेंट उसके डेरिवेटिव का आएगा बेटा, ये डी थीटा बाई डी टी को ना बेटा अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें, ये एक अपने आप में टर्म है, मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, ये शायद सबको पता होगा, कई बच्चों ने सुना भी होगा कि ये जो डी थीटा बाई डी टी होती है दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा। बेसिकली कितना एंगल घूमा, डी थीटा बाई डी टी, एंगल रोटेटेड। आप सोचो वो अगर रोटेट हो रहा है तो वो छोटा सा एंगल घूमेगा डी थीटा कितने टाइम में, डी टी टाइम में। तो छोटा सा एंगल जो रोटेट होगा वो होगा डी थीटा डी टी टाइम में, एक सेकंड में जो एंगल चेंज होगा दैट इज डी थीटा बाई डी टी। इट इज एक्चुअली एंगल रोटेटेड पर सेकंड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई वेक्टर घूम रहा है ना तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ओमेगा। तो ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। सो बच्चों मैं आपको क्या कह रहा था कि जो डेरिवेटिव है एक वेक्टर का, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, पहला कंपोनेंट आपका आएगा रेडियल डायरेक्शन में दैट इज dr बाई dt, और एक कंपोनेंट बेटा आपका आएगा, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहें, टेंजेंट की डायरेक्शन में, एंड दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये vt है, एंड व्हाट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट इज r इंटू डी थीटा बाई डी टी, और आई कैन से r इंटू ओमेगा, एंड दैट इज टेंजेंशियल। ठीक है, तो बच्चों एक आपकी आएगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, एक आपकी आएगी रेडियल वेलोसिटी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अब देखिए क्या शानदार बात आने वाली है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज द नेट वेलोसिटी। ठीक है, तो बेटा इस बात को देखिए, आर वेक्टर एक वेक्टर है, उसका जो डेरिवेटिव है वो भी एक वेक्टर है, दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर। लॉजिकल है ना मेरा भाई तेरा भाई।
तो वेक्टर का डिफरेंशिएशन जो होगा वो एक वेक्टर ही होगा, और वो जो वेक्टर होगा वो ओरिजिनल वेक्टर के साथ कुछ एंगल पे होगा, लेट्स से दैट एंगल इज अल्फा। उस वेक्टर का जो वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज रेडियल वेलोसिटी, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये इस बात को भी आप दिमाग में रखें, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के चेंज के बराबर को चेंज को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप वैसे भी बेटा सोच के देखिए, ये मैग्नीट्यूड था, ये डायरेक्शन था, तो जब आपने मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट किया तब आपका रेडियल कंपोनेंट क्रिएट हुआ, देन दिस कंपोनेंट इज क्रिएटेड। और जब आपने डायरेक्शन को, बेटा लॉजिकल भी है ना, अगर आप देखो थीटा को चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो थीटा को चेंज करोगे तो डी थीटा बाई डी टी आएगी, तो आपकी ये जो टिप है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी रखेगी, दैट इज आर इंटू ओमेगा। सो दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो बड़ी बेटा सीधी सी स्पष्ट सी बात है। मैं दोबारा एक बार कंक्लूड करता हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, आपकी जिंदगी बन जाएगी अगर आपको ये एक इनिशियल, आज सिर्फ बेटा ये एक स्टार्ट दे रहा हूं आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स को सीखने का, बिकॉज आई थॉट बहुत बच्चे ओलंपियाड्स की जब प्रिपरेशन करते हैं इसकी क्लैरिटी ना होने से बहुत क्वेश्चन उनके करते हैं। तो मेरी बात को दोबारा फिर देखिएगा कि अगर आप एक वेक्टर को, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं तो जो उसका डेरिवेटिव होगा वो भी एक वेक्टर होगा, और उस वेक्टर का दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट आएगा वेक्टर की डायरेक्शन में, दैट इज डी आर बाई डी टी, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के चेंज के लिए, और एक कंपोनेंट आएगा ओरिजिनल वेक्टर के परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन, दैट इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, उस वेक्टर की डायरेक्शन के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप ऐसे सोचो, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, लाइक सर्कुलर मोशन अगर आप याद करें, अगर सिर्फ डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है तो उस केस में आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो रेडियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और सिर्फ पार्टिकल सर्कल मोशन अगर आप डिस्क्राइब करें तो टेंजेंशियल वेलोसिटी रखेगा। और अगर दोनों जीरो नहीं हो रहे, ठीक है, तो आपका जो वेक्टर है वो एंगल पे आएगा, रेडियल वेलोसिटी भी आएगी और टेंजेंशियल वेलोसिटी भी आएगी। तो स्टूडेंट्स, आई रियली विश आपको कुछ बेसिक्स जो से हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के क्लियर हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ एक सवाल आपको, जब अब इतनी मेहनत की है हमने तो एक आज आपको क्वेश्चन करवाते हैं बेटा। तो गाइस ये आपके सामने एक सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, सिंपल है, इजी है। आपके सामने बेटा रेडियल वेलोसिटी आर वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, और आपके पास बेटा वेलोसिटी वेक्टर, मतलब आपको आर वेक्टर भी गिवन है किसी एक इंस्टेंट पे, दीज आर दी वैल्यूज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, और आपको बेटा वी वेक्टर भी गिवन है दैट इज 12i कैप प्लस 5j कैप, और आपसे पूछा गया है dr बाई dt, ठीक है, दैट इज दी रेडियल वेलोसिटी कितनी है, और आपसे पूछा गया है d थीटा बाई dt, मतलब वो वेक्टर का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो वेक्टर का डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब वो रोटेट भी हो रहा है, तो आपको उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी गिवन है। ठीक है, आपको ओमेगा भी निकालना है। ठीक है, तो गाइस वीडियो को पॉज करें, मैंने काफी थ्योरी आपको दे दिया है, मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं करवाना चाह रहा था, मैंने कहा बच्चों को पहले थोड़ा सा अपन एक बार कुछ हथियार दें और फिर उसके बाद हम इस वॉर को शुरू करें। तो वीडियो को पॉज करें, बहुत बच्चों ने तो ओरली भी कर लिया होगा, ठीक है, तो आई होप, हाँ जी बच्चों पॉज करें, अटेम्प्ट करें, आई होप आपने कर लिया होगा, एंड देन आई कैन डिस्कस। ठीक है, फाइन गाइस, आइए तो शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब आप देखिए इसको फटाफट हम किनारे लगा देंगे। तो गाइस ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है आपके पास बच्चों वाई एक्सिस, आपके पास बेटा गिवन है एक आर वेक्टर, ठीक है, हम यहां एक वेक्टर बना लेते हैं, ये आपके पास आर वेक्टर है, और गाइस आपके पास एक वी वेक्टर है, ठीक है, आपके पास एक वी, मैं थोड़ा सा बेटा इसको जरा ठीक कर देता हूं, यस, ये जो आपके पास है एक वी वेक्टर है, यस, ओके। सो गाइस आर वेक्टर का वैल्यू पता है, वी वेक्टर का वैल्यू पता है,
तो गाइस बड़ी सीधी सी बात है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। जो कंपोनेंट आर की डायरेक्शन में आएगा उसे हम बोलेंगे रेडियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ठीक है, और जो कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर आएगा उसे हम बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंड दैट इज दिस एंगल इज थीटा, सो दैट इज इक्वल टू आर इनटू डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, दैट इज द थ्योरी। ठीक है, तो गाइस मेरी इस बात को समझो, व्हाट इज डी आर बाई डी टी। अगर मैं डी आर बाई डी टी को थोड़ा सा ध्यान से समझ जाऊं, ठीक है, गेम ओवर होगी आपकी, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इट्स नॉट वेक्टर, या इट्स अ कंपोनेंट। ठीक, हाँ जी गाइस, तो अगर डी आर बाई डी टी को ध्यान से बस इंग्लिश में बोल दो, कहना क्या चाह रही है। डी आर बाई डी टी इज नथिंग, इट इज द component of velocity in direction of r vector। ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में। तो गाइस किसी भी वेक्टर का अगर मुझे वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है आर की डायरेक्शन में, तो गाइस मेरे ख्याल से आप समझते होंगे वो हम कैसे निकालते हैं। ये अपने आप में एक डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी है। किसी भी वेक्टर का अगर मुझे कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, किसी भी वेक्टर का v का कंपोनेंट निकालना है किसकी डायरेक्शन में, r की डायरेक्शन में, तो जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से हम उसे डॉट कर देते हैं। सो v डॉट r क्या, सिंपल, गेम ओवर। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, बट इसको करने के लिए पीछे थ्योरी बहुत सारी है। आई होप ये वेक्टर्स का ये नॉलेज आपके पास जरूर होगा कि किसी भी वेक्टर का अगर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, सो व्हाट आई डू, आई डॉट प्रोडक्ट दैट वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। सो v डॉट r कैप गाइस, आई गेस गेम आपकी ओवर है। व्हाट इज v वेक्टर, v वेक्टर इज नथिंग। हाँ जी, अगर हम इसको पूरा कंक्लूड कर दें क्वेश्चन को, हाँ जी, व्हाट इज v वेक्टर, सो मैं आई कैन राइट व्हाट इज dr बाई dt, dr बाई dt इज v वेक्टर, v वेक्टर की वैल्यू लिख दीजिए बेटा 12y कैप प्लस 5j कैप। इसको बेटा डॉट कर देते हैं किसके साथ, r कैप के साथ। तो r कैप किसके बराबर होगा, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज, है ना, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, r का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 के बराबर होगा, √3² प्लस √4², सो दैट इज आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। और बच्चों ये भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका हो गया, 12 इंटू 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे 36। डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, a1 a2 कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, प्लस b1 b2 प्लस 5 इंटू 4 दैट इज 20 अपॉन 5 स्टूडेंट्स, सो दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 36 प्लस 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 56/5 मीटर पर सेकेंड। कितना प्यारा सवाल है। सो dr बाई dt की बच्चों जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज 56/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बट जेन्युइनली ओलंपियाड लेवल है, बिकॉज बहुत कम चीजें, बहुत कम लोग हैं जो इस पॉइंट को पकड़ पाते हैं और इसे टच करते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों मैं चाहता हूं एक बार आप अपना थॉट दो डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी, ठीक है, एंड देन वी कैन डिस्कस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी। आई होप आपने दे लिया होगा, ठीक है, नहीं दिया तो एक बार पॉज कर दीजिए वीडियो को और एक बार अपना थॉट दीजिए, व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, कैसे निकलेगा। ठीक है, मैं यस ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपने थॉट दिया है उसके ऊपर। ठीक है, तो यस, तो गाइज व्हाट वाज माय v वेक्टर, v वेक्टर वाज सॉरी इट वाज 12y कैप, yes it's a 12y cap plus 5j cap, okay, and what is guys r vector, r vector आपका निकला था 3i cap plus 4j cap। ठीक है, हम एक बार डेटा दोबारा देख लेते हैं। सो 3i cap plus 4j cap is r cap और 12y cap और 5j cap is v vector। हाँ, सो गाइस dr by dt की वैल्यू अभी हमने निकाली, हमने क्या किया, हमने v वेक्टर को r कैप से डॉट कर दिया और हमारा आंसर निकल के आया है 56/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज आवर आंसर।
ठीक है, अब अपने को बेटा क्या निकालना है, डी थीटा बाई डी टी। गाइज इस बात को समझिए आप, किसी भी वक्त, ठीक है, इफ दिस इज माई आर वेक्टर, किसी भी वक्त पार्टिकल के पास अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दो वेलोसिटीज होंगी, ठीक है। एक वेलोसिटी आएगी आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, और एक आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी, सॉरी दिस इज नॉट टेंजेंशियल, दिस इज रेडियल वेलोसिटी, या एक सेकेंड, या ये बेटा आपकी जो वेलोसिटी आ रही है, यस दिस वेलोसिटी इज गाइस रेडियल वेलोसिटी, और जो ये वेलोसिटी बच्चों आपकी आ रही है, ये आपकी आ रही है टेंजेंशियल वेलोसिटी, और इन दोनों का जो नेट होगा, ठीक है, आपको स्मार्टली निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी तक जाना है, आप समझ गए होगे हम क्यों जाना चाहते हैं, दैट इज माई नेट वेलोसिटी। सो गाइस व्हाट इज माई नेट वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो गाइस मेरे ख्याल से अगर आप स्मार्टली देखें, आपको नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, ये 12 वाई कैप और 5 जे कैप ये आपकी नेट वेलोसिटी है। सो नेट वेलोसिटी आपकी आएगी अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड दैट कम्स आउट टू बी 13। So net velocity is nothing, that is 13 square, and that is equal to tangential velocity square plus guys what is radial velocity। तो radial velocity अगर आप निकालेंगे, radial velocity is coming out to be 56 upon 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज 13 स्क्वायर माइनस 56 अपॉन 5। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, आपकी रेडियल वेलोसिटी यही आई थी, यस 12 3 द 36 एंड 5 इंटू 4 20, 36, हाँ 56 अपॉन 5 आपकी जो निकल गई थी, दैट वाज माय रेडियल वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक है। तो यस 56 अपॉन 5 का स्क्वायर का गाइज अंडर रूट, ठीक है। एंड गाइज आई नो व्हाट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की अगर वैल्यू याद रखें, दैट इज आर इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। तो गाइज आई गेस क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी का वैल्यू पता है, आपको आर की वैल्यू पता है। आप देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम आर को ऑब्जर्व करें, लेट मी चेंज द कलर, या सो यू कैन से द वैल्यू ऑफ आर इज नथिंग, इट इज सिंपली 5, ये भी हमने निकाली है। सो आई नो द वैल्यू ऑफ आर, I know the value of tangential velocity, you can solve it and we can easily find the value of d theta by dt. So what is d theta by dt? That is tangential velocity upon r. ठीक है, बस कैलकुलेशंस हैं, आप आराम से कर लीजिएगा एंड वर्क एंड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बच्चों एक सवाल है, सवाल सिर्फ एक है, वेक्टर्स का क्वेश्चन है, आर वेक्टर गिवन है, वी वेक्टर गिवन है, किसी एक इंस्टेंट पे आपसे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेट पूछा गया है और आपसे उस वेक्टर का एंगुलर का जो चेंज है डी थीटा बाय dt आपसे वो पूछा गया है। आई रियली विश आपको ग्रेविटी समझ में आ रही होगी कि किस लेवल पे आज हमने क्लास में डिस्कशंस की हैं, एंड आई रियली विश आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा और वेदांतु ओलंपियाड स्कूल ने कुछ मदद की होगी आपके कॉन्सेप्ट्स को इंक्रीज करने में। तो बस हमारा बेटा ये आपसे वादा है, हम आते रहेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाते रहेंगे, और पर्पस वही है कि क्या हम अपने देश में गोल्ड को लेके आ सकते हैं। बट जाने से पहले, जैसा कि हम हर बार आप लोगों से बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, समथिंग लाइक दैट जो आज हमने क्लास में डिस्कस किया, ठीक है। एक बार आप अपना इसके ऊपर थॉट दीजिए और हमें सॉल्यूशंस सेंड करें इस ईमेल आईडी, सो physics.vos@gmail.com पे, ठीक है। तो physics.vos@gmail.com पे इंतजार रहेगा हमें आपके आंसर्स का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, अगली बार मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और इस कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।